Welcome to all of you on the V Plus U Academy. My name is Ashish Garg. So today we will be starting this new series in which I will be telling you the previous year questions asked from the environmental engineering. Environment से जितने भी previous year questions हैं हम उसके बारे में बात करेंगे बेसिकली। अब environmental engineering में क्योंकि एक important subject है तो इसका ओवरऑल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टॉपिक वाइज क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वी विल बी गोइंग विद द सेम स्ट्रेटजी, वी विल सी अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड सी इट्स क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जांपल टुडे आई एम स्टार्टिंग द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे आज। सो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली आई विल बी कंप्लीटिंग ऑल द टॉपिक्स वन बाय वन of the environmental engineering and their previous year questions asked in the UPSC, ESC, GATE exam, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो पहले होता था आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हम कवर करेंगे सो डैट वी अंडरस्टैंड टाइप ऑफ क्वेश्चन यदि आपके वो ESC में भी रिपीट होते हैं तो SSC JEE एग्ज़ाम। तो वी विल बी सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ these papers, these exams. So what is V Plus U Academy? Here we are going to study about the concept with questions. I will also be telling you the short notes of that particular concept. मेरे पास शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, जैसे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के हमारे पास 5 मेथड्स हैं। तो विद द हेल्प ऑफ these short notes I will be telling you these are the kinds of question that is being asked from these topics. Similarly, I will be telling you what are the frequencies of the questions of particular topic. For example, in the population forecasting method, in the arithmetic increase method of population forecasting, that question is being asked frequently. So it is around 3 times when this is question asked in the ESC exam, once in the GATE exam and once in the SSC JEE exam as well. So we will see what is the frequency of those questions in the previous year as well. So my name is Ashish Garg. You can see my credentials here, what I have done. Let's move to the video without any further delay. So these are some tips for prelims. You guys can see these tips or you can see this page directly on my Telegram channel V Plus U Academy. You can go to my Telegram channel V Plus U Academy, from where you can see these tips if you want to prepare for the ESC prelims exam. आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को। दिस ग्रुप ऑल्सो हैव अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स दैट यू कैन सी बाय ज्वाइनिंग दिस ग्रुप ओनली। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू द टुडेज टॉपिक। सो आई एम ऑल्सो टेलिंग दैट आई एम शोइंग यू माई शॉर्ट नोट्स of population forecasting and we will be doing the questions that is being asked from the population forecasting in the previous year. Let's see. So we have 5 methods as I already told you. Up to logistical method we have these 5 methods of population forecasting. Now the type of questions that is being asked are, one question that is asked is what are the factors responsible for change in population. So these notes also take questions. इन नोट्स के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे जो पूछे गए हैं। तो और ये नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ही डाउनलोड कर पाएंगे। सो फर्स्ट मेथड है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपल मेथड है, आप देख सकते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चंस को। सो बाय दिस वे यू कैन डू द अरिथमेटिक इंक्रीज। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से, या फिर यदि मैं ब्रीफ करूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, यदि मैं बताता हूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से ओवरऑल ESC के अंदर 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13 क्वेश्चन इज बिंग आस्क्ड ऑन एन एवरेज एवरी ईयर। तो इसका मतलब कितने मार्क्स हो गए? 26 मार्क्स। तो ये 26 मार्क्स का इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका। सिमिलरली गेट में अराउंड 10 मार्क्स का ऑन एन एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स इन द गेट, मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज हो जाती है। 10% वेटेज है आपकी गेट में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। दिस इज द लीस्ट मार्क्स दैट इज, मतलब 10 मार्क्स के तो क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। देन SSC JEE वगैरह में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। करेक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से पूछे जाते हैं। अब मेंस की बात करें ESC मेंस की, तो ESC मेंस में
अराउंड 110 टू 140 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर से, आउट ऑफ 300 मार्क्स के पेपर में से 110 से 140 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ओनली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिज़ाइन क्राइटेरिया है इसके अंदर, या फिर और भी वैसे इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका हो जाता है। मेंस में ही आपका क्वेश्चन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आपसे लास्ट टाइम मतलब कि 2021 में या 20 में आई थिंक लॉजिस्टिक और मेथड से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो लॉजिस्टिक और मेथड से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको ये 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। ये 4 फॉर्मूले याद रखने में आपको ब्रीफ भी करूँगा, इसके बारे में थोड़ा बताऊँगा, क्योंकि लॉजिस्टिक और मेथड क्या है यूजुअली कोचिंग्स पे कराया नहीं जाता है। तो मैं आपको ब्रीफ करूँगा कि ये मेथड क्या है और कैसे इससे हम पॉपुलेशन फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड इज दिस, यू कैन सी हेयर। अब ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में प्रॉब्लम क्या आती है, कभी ये जो आप आर निकालते हो, जो एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, समटाइम आप ऐसे निकालते हो और कभी कभी आप ऐसे भी निकालते हो, R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn डिवाइड बाई n। तो सिंपली क्या किया आपने, एवरेज ले लिया है जो इंक्रीज इन रेट पॉपुलेशन है। तो लेकिन इसमें आपको इसको क्या बोलोगे, आप इसको ज्योमेट्रिकल एवरेज मेथड, दिस इज योर ज्योमेट्रिकल एवरेज मेथड, ज्योमेट्रिकल एवरेज मेथड इंस्टेड ऑफ ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। तो यदि ये लिखा हो क्वेश्चंस के अंदर तो आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाई ओनली बाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। याद क्या रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये क्या क्वेश्चन ही क्या है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज, तो वाई बार की वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस किए हैं और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये आपको याद रखना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको एससी मेंस देना है या फिर एसएससी जेईई मेंस देना है तो उसमें आपको प्रैक्टिस से ही आइडिया होगा कि भाई ये कैसे फॉर्मूले यूज़ करने हैं। अब बात कर लेते हैं डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड में आपको अगेन पॉपुलेशन डिक्रीज देखना, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 100 पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, 100% डिक्रीज हुए हैं। सिमिलरली आपको ऐसे ही नेक्स्ट टाइम भी कितना डिक्रीज करना है, 100। ये मैं रफली बता रहा हूँ, बेसिकली परसेंटेज से होता है, मतलब कि 600 बाई 900, देन आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 67%, 600 बाई 900 67%। सिमिलरली 500 बाई 1500 दैट इज 33%। तो आपका रफली 34 या 33% का डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में। सिमिलरली आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना है, 33% डिक्रीज करना है। तो मतलब 2000 का 30% आप डिक्रीज कर दोगे इसके अंदर, 2000 का जो इंक्रीज है उसके अंदर 30% डिक्रीज कर दोगे और उसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, पॉपुलेशन इन द 2030। तो आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने का नहीं है। और ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं गया है डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, अदरवाइज ये बस पूछा गया है तो कन्वेंशनल में पूछा जाएगा, इसका आपका प्रीलिम्स या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता। लॉजिस्टिक और मेथड क्या है, लॉजिस्टिक और मेथड की बात कर लेते हैं एक बार। ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है टॉपिक, तो मैं डायरेक्टली उसी PDF या उसी पेज को आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। सो कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली बताता हूँ आपको। लॉजिस्टिक और मेथड में किसी आप एज्यूम कर सकते हैं कोई पॉपुलेशन P0 है, कोई सिटी है, देयर इज़ अ पॉपुलेशन P0 ऑफ दैट सिटी, उस सिटी की पॉपुलेशन क्या है, P0 है। तो जब वो सिटी ग्रो करेगी, अभी क्या है सिटी वो स्टेटिक है, मतलब कि उसका एरिया अभी कवर नहीं है या उसके पास रिसोर्सेज जो हैं अभी सारे यूटिलाइज्ड नहीं है, अंडर यूटिलाइजेशन है। मतलब जैसे ही वो पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो उससे क्या होगा, एक आपको रेट ऑफ ग्रोथ मिलेगी एट ए पर्टिकुलर टाइम। कुछ टाइम के बाद जो रेट ऑफ ग्रोथ है आपको क्या हो जाएगी, एक मैक्सिमम पीक पे पहुंच जाएगी। मतलब क्या होगा, यू हैव यूटिलाइज्ड मैक्सिमम रिसोर्सेज इन दैट पर्टिकुलर लैंड। रिसोर्सेज वो कुछ भी हो सकते हैं, वहाँ की लैंड, वाटर, एयर कुछ भी हो सकती हैं। तो वो सब रिसोर्सेज आपने मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया होगा, तो आप क्या समझ सकते हैं इससे कि आपके रिसोर्सेज यूटिलाइज हो गए हैं। तो उस पॉइंट के ऊपर आपको जो पॉपुलेशन है, उस पॉइंट के ऊपर जो पॉपुलेशन है उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। जो एक कर्व देख रहे हो आप, पॉपुलेशन ग्रोथ की कर्व है, आपको मिलेगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट के बाद आपको पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि एक मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको रीच हो गई है। अब जैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज करेगी, अब क्या होगा, डिक्रीज करेगी। तो डिक्रीजिंग
पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आपको क्या मिलेगी, सैचुरेशन पॉपुलेशन। ये क्या मिलेगा आपको, सैचुरेशन पॉपुलेशन। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक पॉपुलेशन एक टाइम के ऊपर आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कितनी पॉपुलेशन होगी। तो ये क्या होता है, फोरकास्टिंग। इसी को क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग। आप फोरकास्ट कर सकते हो। और ये मेथड किसने दिया था, पीएफ वर्हल्स्ट। पीएफ वर्हल्स्ट, ये पूछ सकते हैं किसने दिया था लॉजिस्टिक कर्व मेथड, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ गिवन बाय पीएफ वर्हल्स्ट। तो ये इसका बेसिक फंडा था कैसे काम करता है लॉजिस्टिक कर्व मेथड का। अब इन्होंने जो क्वेश्चंस हैं या जो इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है, इंपेरिकल सॉल्यूशन दिया है, उन्होंने फॉर्मूलेज दिए हैं डायरेक्टली हमें। इन्होंने में इंपेरिकल फॉर्मूलेज दिए हैं जिससे आप पॉपुलेशन फोरकास्ट कर सकते हो। तो मैंने जैसे वहाँ भी बताया था, इसके मेनली 4 फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। ये 4 फॉर्मूलेज हैं, ये यहाँ पर क्लियर नहीं है तो मैं आपको वहीं पर दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बोलेगा ईयर 1971 में पॉपुलेशन इतनी है, 60,000 पॉपुलेशन है। जैसे 91 में 1,20,000 है और 2011 में 1,80,000 पॉपुलेशन है। तो आपको पूछेगा सैचुरेशन पॉपुलेशन क्या होगी और पॉपुलेशन इन द 2031 क्या होगी। 2031 में आपकी पॉपुलेशन क्या होगी बाय लॉजिस्टिक कर्व मेथड। तो आप कैसे सोल्व करोगे इसको, सैचुरेशन पॉपुलेशन निकालने के लिए आपको डायरेक्ट फार्मूला गिवन है 2 P0 P1 P2। ये डायरेक्ट फार्मूला आप ये समझ लीजिए, दिस इज योर डायरेक्ट फार्मूला। और इसके अंदर P0 क्या है, दिस इज योर P0। लेट मी चेंज द कलर। ये आपकी P0 की वैल्यू है, दिस इज योर P1 एंड दिस इज योर P2। पॉपुलेशन है बेसिकली ये। तो P0 P1 P2 आपको गिवन है, सब कुछ गिवन है आपको। आप क्या निकाल सकते हो, सैचुरेशन पॉपुलेशन। देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। ये मेजर फार्मूला है जिससे आप पॉपुलेशन फोरकास्ट करोगे। दिस इज द फार्मूला बाय विच यू कैन फोरकास्ट योर पॉपुलेशन। P = PS डिवाइड बाई 1 + m e की NT। अब m की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, PS - P0 डिवाइड बाई P0। सिमिलरली n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। बस आपको याद रखना है जो t की गिवन है इसमें, वो t जो है वो इसका डिफरेंस है। मतलब कि आपका जो डाटा गिवन है उसका जो ईयर्स में डेकेडल डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर 2 डेकेड का डिफरेंस है तो t की वैल्यू 20 ईयर्स होगी। यहाँ पे t की वैल्यू क्या होगी, 20 ईयर्स। और जब आप इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, जब आप PS भी पुट कर दोगे, MB और NB, तो आपको क्या मिलेगा, आपको पॉपुलेशन फोरकास्ट कर पाओगे। आप क्या कर पाओगे, पॉपुलेशन फोरकास्ट, जो आपसे पूछी भी गई है। तो और यहाँ पर टी कितना यूज़ करोगे इस केस में आप, तो इस केस में यूज़ करोगे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू, इनिशियल पॉइंट है 1971 और कहाँ तक जाना है 2031 तक, आपको ये टाइम आपको यूज़ करना है, दैट इज़ 60 ईयर्स। तो आप ये डायरेक्टली यूज़ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉपुलेशन फोरकास्ट। ये लिखा भी हुआ इधर, ESC 2020 मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपका ESC में या फिर SSC JEE मेंस में भी काम आएगा। SSC JEE मेंस में भी ये आपको हेल्प करेगा। So these are the kind of questions that is being asked from here। अब गेट के क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं। गेट में क्या पूछा गया है, गेट में या ESC में, गेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको क्या बोलेगा गेट में कि आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन रहेगी। प्रेजेंट पॉपुलेशन जहाँ जैसे कि यहाँ पे गिवन है, देन यू हैव गिवन द वाटर कंजम्पशन। वाटर कंजम्पशन कितनी है, एग्जिस्टिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी कितनी है। तो और बोला जाएगा कि यदि पॉपुलेशन इंक्रीजेज टू 44,000, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन 20 ईयर्स, देन यू हैव टू टेल द नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ ऑन प्लांट रीचेज इट्स कैपेसिटी। कब प्लांट अपनी कैपेसिटी पर रीच हो जाएगा। तो आपको ये सोल्व करना है। इसमें सिंपली आप क्या कर सकते हो, ये या तो ये सॉल्यूशन देख लीजिए या डायरेक्टली आप क्या करो, पर पर्सन के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल लो, वाटर कंजम्पशन, पर पर्सन वाटर कंजम्पशन निकाल लीजिए आप। देन you can calculate the number of person required to reach this water plant capacity। तो वहाँ से आपको number of person निकल जाएंगे, ये ऐसे सोल्व करके number of person निकल जाएंगे। then simply you have to interpolate करना है, फिर कुछ नहीं बचता। आपको टाइम्स गिवन है, आप टाइम निकाल सकते हैं और आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आपका गेट का 2004 का और ESC का 2006 का क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स का पूछा गया था। गेट में भी 2 मार्क्स का और ESC का तो होता ही आपका 2 मार्क्स का है। तो ये दोनों जगह पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको अगेन पॉपुलेशन गिवन है 0 पे 10 आफ्टर 10 ईयर, 20 ईयर्स एंड 30 ईयर। आपको बतानी है पॉपुलेशन, एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन इन द नेक्स्ट डेकेड, मतलब कि P40 पॉपुलेशन इन द 40th ईयर। आप इस क्वेश्चन को
क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ये गेट का क्वेश्चन है वैसे 1998 का, तो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये किस मेथड से करना है, क्योंकि हमारे पास 5 मेथड्स हैं, तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं इधर, बट वी विल चूज़ द मेथड विच इज़ द मोस्ट सुटेबल। तो सुटेबल मेथड कैसे चूज़ करेंगे, हमें पता है कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो है वो आपका मिनिमम पॉपुलेशन देता है, मिनिमम पॉपुलेशन देता है। यदि आप कभी भी अर्थमेटिक इंक्रीज से पॉपुलेशन फोरकास्ट करोगे तो वो मिनिमम पॉपुलेशन देगा। जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन देगा, जियोमेट्रिक इंक्रीज आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन देगा। आप ये सोल्व करके चेक कर सकते हो कौन सा मेथड कितनी पॉपुलेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो जियोमेट्रिकल मैक्सिमम पॉपुलेशन देगा। आप वैसे भी सोच सकते हो, क्योंकि जियोमेट्रिकल में क्या है, आपका एक कॉमन रेशियो है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार, तो आपकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। तो और ये सुटेबल किसके लिए होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड इज सुटेबल फॉर, तो ये सुटेबल होता है न्यूली कंस्ट्रक्टेड सिटीज़, न्यूली कंस्ट्रक्टेड सिटीज़ के लिए। जबकि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है जो, वो सुटेबल रहता है फॉर ओल्ड एज वेल एज न्यू सिटीज़। इट इज़ सुटेबल फॉर ओल्ड एंड न्यू सिटीज़। तो ये क्या एक बहुत अच्छा मेथड है एज़ कम्पेयर टू अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, क्योंकि अर्थमेटिक तो आपको मिनिमम पॉपुलेशन देगा, ज्योमेट्रिक मैक्सिमम देगा, लेकिन इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड आपको पॉपुलेशन इन बिटवीन देगा इन दोनों के। और ये सबसे सुटेबल मेथड है यदि आपको कुछ भी गिवन नहीं हो डाटा कि भाई किससे आपको पॉपुलेशन निकालनी है। तो यूज़ इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, यू नो हाउ टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन यूजिंग इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ये आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द गेट एग्जाम, ESC एग्जाम और इवन SSC JEE एग्जाम। SSC JEE में आपसे ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए और ये यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकल जाएगा। सो दिस इज़ द वीडियो फॉर टुडे। आई होप you like this video. If you have any query, any question in mind regarding population forecasting, you can either message me on this video, or you can ask this question on the Telegram channel. Thanks for watching this video. Have a nice day.